Hello and welcome to Secrets of Storytellers. I'm your host Shubham Agarwal. जब भी कुछ नया होता है, पहली बार होता है, तो वो हमेशा स्पेशल होता है, आई थिंक. एंड हमारा आज का एपिसोड इज ऑल्सो स्पेशल फॉर लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर न्यू. मैंने कुछ 60-61 एपिसोड्स किए हैं अपने पॉडकास्ट पे आज तक, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन ऑडियो ओनली. बट टुडेज एपिसोड इज द फर्स्ट विच इज ऑडियो एंड वीडियो बोथ. Secondly, this episode will be launching on YouTube as well for the first time, so you can catch us there as well. And third, and probably the most important, is that this is the first episode जो Shark Tank India special series पे है. So a lot of special things. So let's get started. हमारे साथ प्रतीक गाड़िया हैं आज. He's the founder and CEO of the Yarn Bazaar. He was featured on Shark Tank India recently, and he successfully raised 1 crore rupees for 10% equity. From 4 sharks, in fact, Anupam Mittal, Piyush Bansal, Aman Gupta, and Rashneet Grover. I'm sure all of you know of the 4 sharks. So come, let's hear from Prateek about his Shark Tank India experience, कैसा रहा उनका experience tank में, and उनके business के बारे में, the Yarn Bazaar. Hi Prateek, welcome to Secrets of Storytellers, and congratulations for successfully raising a round in Shark Tank. Thank you so much, Shubham. Thanks for having me. Thanks for inviting me, and thanks for the welcome. Pleasure, Prateek. So Prateek, आप एक yarn के business में हैं, if I'm not wrong, the Yarn Bazaar, right? As the name says. So just a very simple and basic question for all our listeners. What is yarn? इसका मतलब क्या होता है? So just a little correction there, if you don't mind. We're not a yarn company. We're a tech company. Through technology, we're creating a B2B yarn supply chain solution. But yes, to answer your question, yarn मतलब basically धागा जिससे कपड़ा बनता है. So आप अगर एंड प्रोडक्ट देखोगे, जैसे फैशन होता है, फैशन कुड बी द टी शर्ट यू आर वेयरिंग और द शर्ट आई एम वेयरिंग, ट्राउजर्स, डेनिम्स. Then there's home furnishing. So home furnishing has products like bed sheets, pillow covers, curtains. This technical textile which is like car seat covers. These all textile products. And ये सारे products जो बनते हैं वो मेन धागे से ही बनते हैं. आपको धागे के अलावा इसमें और कुछ नहीं दिखेगा. Okay. I love that, that correction जो आपने मेरे को करेक्ट किया कि आप टेक कंपनी है, आप यार्न कंपनी नहीं है. बिकॉज आई रिमेंबर कि आपने पिच में ही बोला था कि मेरे को यार्न का बिजनेस नहीं करना है, राइट? बट इन अ वे दैट्स कनेक्टेड, बट स्टिल इट इज नॉट अ यार्न बिजनेस. ये एक टेक बिजनेस है, व्हिच इज ग्रेट. एंड आई थिंक वी ऑल रिमेंबर दैट फ्रॉम योर पिच इन द शार्क टैंक ऑल्सो. But I still think in some ways you're still connected to the yarn business. The suppliers, the dealers, everyone who's a customer is also somehow connected with the yarn business. तो आप इसको destiny कहोगे, serendipity कहोगे या क्या कहोगे? I would say it's pure destiny. As you said, what was also discussed in Shark Tank, what you just mentioned, ki I have a family business in textile which I didn't want to be a part of after a certain point. And that's when I changed my course. I went to Warwick, did my masters there, came back. But there were certain crises in the family business which pulled me back, and I think that was great because that allowed me a deeper understanding into the broken supply chain problem, and that's how the journey of the Yarn Bazaar started. So I'd say it's pure destiny. Right. ऐसा अक्सर होता है कि some challenges जब भी होते हैं, they bring us with them an opportunity, and I can see that you made that opportunity into a big thing. So congrats on that once again. So Prateek, ये idea कैसे आया आपको? You said कि when you came back, आपको market के बारे में ज़्यादा समझ आया about the whole business as well. So how did this idea come to your mind? If you could tell us something about that. Sure. So when I joined my family business, so the first thing that I started looking into was sourcing and production. मतलब family business है fabric manufacturing का, तो हम लोग धागा खरीद के, yarn खरीद के कपड़ा बनाते हैं. And that's when I got fed up with the inefficiencies in the system. It's the supply chain is entirely broken. So from pre-sales, sales, fulfillment, and post-sales, you have a lot of inefficiency. There's no transparency. The entire system is very archaic. It's very obese. So it affects your business because, like I said earlier, आज एक कपड़ा जो हम लोग बना रहे हैं, 70, 80, 90% of the cost is nothing but yarn purchase, which means it's very sensitive to our business. So beyond a point, I was like, there has to be a better solution, and if there's no one else doing it, let me look into this. Wow, I think you saw an opportunity and you made great use of it. So Prateek, generally किसी भी business को start करने से पहले I think कुछ 2-3 fundamental questions होते हैं, हर एक के दिमाग में I think आते हैं. पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा,
ऑब्वियसली आप शार्क टैंक इंडिया गए उसके लिए, बट बिफोर स्टार्टिंग और शुरू के ईयर्स में इन द स्टार्टिंग ईयर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, क्योंकि आपको अपने लिए भी एक सस्टेनेंस चाहिए, अपना लाइफ भी चलाना है। फर्स्ट स्टेप क्या हो, कैसे चैलेंजेस आएंगे, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो ये सारे क्वेश्चंस क्या आपके दिमाग में भी थे? डिड दीज आल्सो ट्रबल यू फॉर सम टाइम? तो मेरा है ना एक्चुअली बिजनेस का अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है। ओके। देखो हमने द यान बाजार जो चालू किया ना, हमने एक क्लियर विजन के साथ शुरू किया। तो विजन दिमाग में था कि विजन है वी वांट टू ऑर्गेनाइज दिस अनऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फिर बैकवर्ड वर्क किया कि ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या करना है, कि बायर या हम्म। सप्लायर की मेन नीड्स डिजायर्स प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे एड्रेस करें। ऑब्वियसली आपने जैसे कहा बिजनेस चालू करने के लिए आपको पैसा देखना है, बिजनेस मॉडल देखना है, टीम बिल्डिंग देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। बट है ना उसको ये नहीं सोचने का कि वो कैसे, मतलब वो एक चैलेंज है, इट्स नॉट अ चैलेंज, ये तो आपको करना है। और आप कैसे हम्म। करोगे, देखो हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। आज के टाइम पे इंडिया में भी ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है कि पैसा रेज करने की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक अच्छे फाउंडर हो, आपने अच्छी टीम बिल्ड की है, आप एक अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हो, तो इन्वेस्टर्स बहुत है। वेदर राइट। एंजल्स की बात करो या सीड फंड्स है या वेंचर कैपिटल फंड्स है, राइट। तो हर चीज़ के रास्ते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, नहीं है तो आप बना सकते हो, राइट। बिकॉज फाउंडर का काम ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। Right, very rightly said. Yeah, lovely. I think the clarity that you have, and like you said, कि help is out there. You just have to take that first step. आप एक step लो, दो step लो. The universe will probably take 5 steps for you. 100% आई थिंक आपने जो बात कही ये बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी बार ऐसा रहता है कि सॉल्यूशन नहीं भी है ना, तो फिर आपका काम है Hmm. 4 लोगों से मिलना और उनके साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाना। Hmm. बिकॉज़ अगर अपॉर्च्युनिटी बड़ी है ना और आप किसी को समझा पा रहे हो कि इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, तो सॉल्यूशन बनाने वाले लोग मिल जाएँगे आपको फिर। Right, lovely. I think great advice. Pratik, you said कि आपको अपनी फैमिली को बिजनेस नहीं ज्वाइन करना था for all the good reasons that you had. But ultimately, you know, एक छोटा सा divergence towards the IT business, but still connected to that business in a way. इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स, फैमिलीज, दे जज यू कि कैसे करोगे, हो टेस्टिंग पाएगा नहीं हो तो पाएगा। सो वो इनिशियल पुशबैक, वो इनिशियल क्वेश्चंस, उस सब से आपने कैसे टैकल किया अपने आप को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली देखो शुरू-शुरू में इन मोस्ट केसेस, बारिंग एक्सेप्शंस, आप नोटिस करोगे कि स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे आप सपोर्ट या एक मोटिवेशन एक एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं आता है। हम्म। मेरे केस में भी वही सिनेरियो था बिकॉज़ फैमिली बिज़नेस था जो एक फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड था। तो एक एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस को ग्रो करना फेयरली ईज़ियर करेक्ट। है। आई एम नॉट सेइंग ईज़ी है बट फेयरली ईज़ी है कंपेयर टू खुद का ही पूरा नया सेटअप क्रिएट करना और शुरुआत से 0 टू 1 करना। करेक्ट। बट आई थिंक फाउंडर का काम है एक्सेप्टेंस नहीं ढूँढने का। मतलब आपकी फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम पीपल अराउंड यू। अगर आपका कन्विक्शन है कि आप जो करना चाह रहे हो उसमें कुछ दम है, कि वो आगे हम्म। जाके बड़ा बिज़नेस बनेगा एंड बिज़नेस के अलावा वो काफ़ी लोगों की नीड सॉल्व करेगा। तो आई थिंक वो कन्विक्शन के साथ आप आगे बढ़ो, लोगों के अप्रूवल तो धीरे-धीरे आते रहेंगे। आज जैसे आपने देखा शार्क टैंक में जो हम आए, तो शार्क टैंक में आने से राइट। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जिनको लगता था यार ये प्रतीक क्या कर रहा है पता नहीं, ऐसा होता या। है क्या? ऐसा हो सकता है करेक्ट। क्या? तो उनको धीरे-धीरे वो ट्रस्ट और वो एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू होता है। ग्रेट। क्रेजी। आई थिंक लवली आंसर। डोंट फाइंड वैलिडेशन, अप्रूवल, और वैलिडेशन के लिए हम लोग अक्सर वी क्रेव फॉर इट, आई थिंक, इन आवर डे टू डे लाइव्स, बट एंड एज ये एन चीज़ खाली एंटरप्रेन्योर। फाउंडर्स के लिए नहीं है शुभम, आप अगर बड़े-बड़े राइट। आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन है, एनीबॉडी हम्म। आई थिंक अक्रॉस डिफरेंट फैब्रिक्स ऑफ सोसाइटी, आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों को राइट टाइम पे वो सपोर्ट नहीं मिला बट वही लोग थे जिन्होंने अप्रूवल का वेट नहीं किया और अपने वो बाहर जाकर वो शुरुआत की, उनकी जो सोच थी या उनकी जो जर्नी राइट। थी, धीरे-धीरे उन्होंने वो अचीव किया है बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ आई मीन यू हैव टू हसल। या। या। ये एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्लैरिटी। इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हसलिंग और कुछ नहीं है। राइट, राइट। प्रतीक, ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में अभी आई है या पहले से थी? आई डोंट नो यार, मेरे ख्याल से आप ये सवाल द पीपल हू नो मी बेटर शायद उनको पूछोगे तो वो शायद ज़्यादा बता राइट। पाएँगे। आई फील आई हैव ओके। ऑलवेज़ बीन काइंड ऑफ क्लियर। नाइस, नाइस, दैट्स नाइस टू हियर। सो कुछ शार्क टैंक इंडिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक आपका पिच जो है वो 5th जनवरी को टेलीकास्ट हुआ था, बट आई एम श्योर जो रिकॉर्डिंग है वो वुड हैव हैपेंड मच अर्लियर। सो कैन यू वॉक अस थ्रू द प्रोसेस, कैसे स्टार्ट हुआ,
क्या-क्या स्टेप्स थे? हाउ डिड यू गो थ्रू इट? वर यू नर्वस? वर यू व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस? शुभम, मेरी जर्नी थोड़ी वियर्ड थी। मुझे ओके। एक्चुअली शार्क टैंक में अप्लाई करना ही नहीं था। मुझे अच्छा। पता था कि ये एप्लीकेशन चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। ओके। मुझे ऐसा लगा अगर आपने शार्क टैंक यूएस या ऑस्ट्रेलिया, ड्रैगन डेज, यस। कोई भी उनके दूसरे आई फॉर्मेट्स देखे अगर, तो शार्क टैंक का जो फॉर्मेट है, बिकॉज़ इट्स अ टेलीविजन शो अल्टीमेटली, वो करेक्ट। ज़्यादा उन लोगों के लिए जो एक कंज्यूमर ब्रांड बना रहे हैं, एक डी2सी ब्रांड बना रहे हैं। यू आर राइट। टेक्नोलॉजी या ऐप या उस तरह का प्ले बहुत कम रहता है। तो उसलिए मैं ज़्यादा चाह रहा नहीं था, बट आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरे पीछे पड़ा। वो बोला, यार प्रतीक अप्लाई कर दे, व्हाट डू यू हैव टू लूज़? देयर इज़ या। नो हार्म ना, एक बार अप्लाई कर दे फिर क्या जाता है। तो यू नो वाओ! उसके बाद भी आई थिंक हफ्ता भर कुछ निकल गया था, आई डिडंट अप्लाई। वन मॉर्निंग आई वाज़ इन ऑफिस एंड आई हैड सम फ्री टाइम। ओके। तो लगा एक बार कि चल ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, देखा जाएगा। एंड अगेन इट्स आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ डेस्टिनी कि फिर वो फर्स्ट फॉर्म जो था, जो फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस था, उधर के बाद राइट। कंफर्मेशन आया कि वी बीन सिलेक्टेड एंड देयर वर मल्टीपल सच फॉर्म्स। हर ओके। सिलेक्शन राउंड के बाद एक फॉर्म या फर्दर फॉर्म था। ओके। सिलेक्ट होते गए, देन देयर वाज वन फिजिकल ऑडिशन, जो आप उनकी बिजनेस टीम के साथ वही पिचिंग कर रहे हो जैसे शार्क टैंक का होता है। अच्छा, ओके। और बिजनेस टीम को वो राउंड के बाद जिन जिनको सिलेक्ट किया, दीज वर द पिचेस व्हिच वर देन सिलेक्टेड फॉर पिचिंग टू द शार्क्स। ओह! अच्छा, सो आपके जो मेन राउंड है, जो मेन जो टेलीकास्ट होता है, उससे पहले आपके कितने राउंड्स थे जहाँ पे आपने पिच किया? नहीं, खाली एक ही राउंड था ये, व्हिच वाज मच ओके। अर्लियर, व्हिच वाज द ओके। लास्ट स्टेप फॉर देम टू डिसाइड कि किनको एक्चुअली सिलेक्ट करना है और किनको ड्रॉप करना है। ओह! अच्छा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, नाइस। हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग दीज़ राउंड्स? डिड यू फील कि ये सही जा रहा है या ये गलत ट्रेन पकड़ लिया है मैंने? हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस देयर? नॉर्मल यार, जैसे आपने पूछा ना कि नर्वस थे क्या, जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन था नहीं, मतलब राइट, वैसे कर लिया कि चलो देखा नथिंग जाएगा। टू लूज़। हाँ, तो अगर वो एटीट्यूड से जा रहे हो आप, तो फिर नर्वस तो कैसे होगे? कि हुआ राइट, तो ठीक राइट। है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, काम तो अपने को करना ही है। शार्क टाइम हो हुँ, नहीं हो कुछ और हो जाएगा, ये नहीं तो वो, बट काम तो करना ही है। तो अगर वो एटीट्यूड से राइट। आप करते हो तो फिर डज़न्ट मैटर। मेरे को वो लंच बॉक्स का डायलॉग याद आ रहा है कि कभी-कभार गलत ट्रेन भी आपको सही जगह ले जाती है। राइट, सो प्रतीक, आई थिंक जो पिच है आपका वो कुछ 10-12 मिनट का था इन ओवरऑल दैट वी सी इन द टीवी। बट जो एक्चुअल पिच है वो कितना लंबा होता है? ऑब्वियसली 10-12 मिनट में कोई आपको 1 करोड़ रुपए नहीं देगा, आई थिंक। तो वो पिच कितना लंबा था पूरा? मेरा पिच ऑलमोस्ट 60 मिनट्स प्लस गया था, 1 घंटे से थोड़ा ऊपर। ओह! ओके, ओके। आई थिंक एवरेज शार्क टैंक पिच एंड स्पेशली शार्क टैंक इंडिया पिच, व्हाट आई हैव हर्ड इज यूजुअली बिटवीन 20, 30, 40 मिनट्स, मतलब 20 से हुँ, 40 मिनट के बीच। अच्छा, ओके। सो मोर द टाइम ऑब्वियसली मोर द मनी। इज़ इट प्रोपोर्शनल और नॉट? I don't know. Maybe you can check with other contestants and validate Yeah, this. we'll sure do that. Yeah, we'll sure do that. So, okay, so once the thing happened, आपको they committed कि आपको funding मिलेगा, amount was set, the equity is set. What is the process after that? पैसा आ गया आपके अकाउंट में या अभी कुछ ड्यू डिलिजेंस है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं? व्हाट इज दैट? नहीं, ऑफ कोर्स ये हर इन्वेस्टमेंट जो एक कमिटमेंट आता है, जैसे ये जो आप टीवी पे जो देख रहे हो शार्क टैंक, दैट इज अ कमिटमेंट। राइट। वो कमिटमेंट गो थ्रू होगा या नहीं होगा, उस वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे एक तो डीडी हम्म। जिसको बोलते हैं, ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस इज गोइंग ऑन। ड्यू डिलिजेंस है ना, एक एक ऐसा प्रोसेस है वेयर दे आर चेकिंग इनटू योर लीगल कंप्लायंसेस, योर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ड्यू ओके। डिलिजेंस होने के बाद एक टर्म शीट आता है, टर्म शीट पे हो सकता है नेगोशिएशन हो, एंड ये सब चीज अगर सही हुआ तो फिर बाद में मनी कम्स इन। ओके। एंड दैट प्रोसेस आल्सो टेक सम टाइम, आई एम गेसिंग कि उसमें भी यस, 1 डेढ़ 2 महीना लगता होगा। अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रिपेयर्ड आप हो, आपके जो ड्यू डिलिजेंस में जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं वो हम्म। कितने रेडी है, कितने नहीं है। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया जो सीजन 1 अभी जो अपन ने देख रहे हैं, उसमें हाँ। आपने नोटिस किया रहेगा काफी कंपनीज बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पर है। तो हाँ, उसमें काफी कुछ सारी प्री कंपनीज ऐसी है वेन्यू भी हैं। हाँ, काफी ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, उनमें फिर ओह! डीडी का अच्छा। उतना जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या है, एक नई फ्रेश कंपनी बननी है। हम्म। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि डीडी आपका हफ्ते भर में भी हो सकता है, महीना भर भी लग सकता है। ओह! सो अगर आपने कुछ धांधलेबाज़ी करी है या कुछ तो गेमिफिकेशन करा पैसा नहीं है मिलेगा अपने तो मिलेगा ही। आपको। राइट, राइट, राइट। Great. These are very good, pointers and behind the scenes knowledge that we all want to know, and great that you could share it with us. सी क्या थोड़ा होता है बिजनेस ना का शुभम, और काफी या काफी काफी फाउंडर्स व्हेन व्हेन दे इन दैट शो,
उधर का जो या सेट है, जो लाइट्स है, दे माइट गेट अ लिटिल अंडर द प्रेशर इन दैट एनवायरनमेंट। तो हम्म काफ़ी बार ऐसा होता है कि फाउंडर ने भूल से कुछ और बोल दिया, मिसरिप्रेज़ेंट कर दिया, नॉट इंटेंशनली बट कर दिया। तो हाँ, ऑब्वियसली वो जब नर्वस ड्यू हो गया। डिलिजेंस होगा और वो चीज़ जब सामने आएगा, अगर इफ ए एंड बी इज़ नॉट मैचिंग और इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, देन द डील माइट नॉट हैपन। इंटरेस्टिंग। हाउ आर यू फीलिंग व्हाइल यू वर इन द टैंक? 5 लोग बैठे हैं सामने, कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं एंड दे हैव ऑल द राइट क्वेश्चंस, कि इनको पता होगा कहाँ पे पूछना है क्वेश्चन, कहाँ पे स्ट्राइक करना है। सो यू आर आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ थॉट्स कि यार हाँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, किसको आंसर करूँ? और कुछ कुछ शार्क्स काफ़ी हार्ड हिटिंग भी रहते हैं। सो हाउ वाज़ आई नो दैट whom you're talking होल about. एक्सपीरियंस? या राइट। सो So हाउ see, वाज़ दैट एक्सपीरियंस? या when I walked into it ना, 2 चीज़, एक तो मैंने आपको जैसे बताया मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ था नहीं। जब आपके हुँ, एक्सपेक्टेशन ही कुछ नहीं, तो फिर वो उतना प्रेशर कुछ आता है नहीं। हुँ, सेकेंडली, द मोमेंट आई वॉक्ड इन, मैंने पहले आराम से 10 सेकंड ब्रीथ इन किया एंड आई फॉरगॉट द कैमरास अराउंड, आई फॉरगॉट द सेट, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। अभी आपसे ओह कैसे बात हो नाइस। रही है, मेरे लिए या था कि चलो 4-5 लोगों के सामने अपने बैठे और बात कर रहे हैं, इट्स अ कैंडिड डिस्कशन। नाइस। वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट फीलिंग, बट लाइक आई सेड कि क्लैरिटी आपके जीवन में पहले से थी शायद। एक सी क्या होता है ना कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप ना, द इनिशियल फ्यू इयर्स विल डिटरमाइन यू एज अ पर्सन। देन ऑब्वियसली आप हुँ, कैसे हो विल डिपेंड, वो आप क्या कर रहे हो उस पे बहुत डिपेंड करता है। When I was very राइट। young, I think I was about 15 or 16 years old, I got into music and I had a band in college. तो क्या ओह होता वाओ! है, I think by having a band or being part of a band, when you do stage shows or like या have a gig, so उधर से वो एक स्टेज फियर वगैरह हट जाता है, ये एक हुँ। कंफर्ट आ जाता है। तो probably that journey of mine helped me with these kind of approaches. सो यू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट और यू वर द Yeah, सिंगर और I हाउ? play guitar. I ओह wish I could वाओ! sing, yeah. ओह नाइस, ओके ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट। आई मीन वी शुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस मोर। अच्छा, सो यहाँ से सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइफ में। ओह ग्रेट, नाइस, शायद। ग्रेट, ग्रेट। सो प्रतीक, थोड़ा-सा बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज़ आई थिंक जिस स्पेस में आप हैं व्हिच इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट। अगर मैं कहूँ बिज़नेस मॉडल, तो आई थिंक बहुत सारे लोग वो मॉडल पे हैं, एग्रीगेटर मॉडल अगर उसको कहें, राइट? यू आर हुँ। बेसिकली ट्राइंग टू मैच बायर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, राइट? एंड जनरली एग्रीगेटर मॉडल में जो मार्जिन्स हैं वो बहुत थिन होते हैं, राइट? यू कैन ओनली मेक अ वेरी स्मॉल कट फ्रॉम इट, आई थिंक। सो हाउ डज़ योर बिज़नेस मॉडल वर्क? हाउ डू यू सस्टेन योर बिज़नेस दिस वेल? सी ऑफ कोर्स आज हमारा जो बिज़नेस मॉडल है प्योर एग्रीगेशन प्ले है। बायर सप्लायर को हुँ, मैच मेकिंग करवा के ऑर्डर ट्रांज़ैक्शन करवाना, फुलफिलमेंट करवाना। तो एग्रीगेशन प्ले में क्या होता है ना, आपका टेक रेट जैसा आपने मार्जिन बोला और लिमिटेड रहता है। हुँ, लिमिटेड होता है या एक समझ लो कैप है कि उसके ज़्यादा आप मार्जिन नहीं ले सकते, बिकॉज़ एसेंशियली यू आर अ राइट, कमीशन एजेंट। ब्रोकरेज जॉब या करेक्ट। कमीशन जॉब ले रहे हो। एंड टिपिकली 2 तरह के बिज़नेस होते हैं। कुछ बिज़नेस होता है जो वॉल्यूम ड्रिवन है। उसमें मार्जिन का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आउटलुक है इसके मैं 10-20 हज़ार करोड़ का काम करूँगा, 1% भी मिला तो देयर इज़ अ सफिशिएंट रेवेन्यू। हुँ, कुछ बिज़नेस होता है जो है प्योर मार्जिन ड्रिवन, कि वॉल्यूम कम है लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो मेरा अल्टीमेट रेवेन्यू ज़्यादा ही रहेगा। राइट, हमारा आउटलुक है जैसे एप्पल का जो बिज़नेस मॉडल है, एप्पल इज़ अ बिज़नेस मॉडल वेयर मार्जिन्स आर वेरी गुड बट अगेन वॉल्यूम्स आर आल्सो देयर, हुँ, राइट? वो सो तो विन-विन हम है। आगे जाके सो हम आगे जाके राइट, यही कर रहे हैं कि जो और लेयर जो ऐड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म प्ले में, देयर आर सर्टेन लेयर्स व्हिच विल अलाउ अस बेटर मार्जिन्स। So ओके, I think having a good combination of volume and margin is the best way to create a scalable and sustainable business model. हुँ, 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 ओके, ग्रेट, ग्रेट। प्रतीक, आई थिंक बिकॉज़ यू हैव सो मेनी गुड एडवाइसेज़, आई कैन रियली फील दैट आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दोज़ आर वेरी क्लियर कि यू टेक दिस पाथ एंड यू फॉलो, एंड यू बाउंड टू हैव अ लॉट ऑफ आई डोंट नो सक्सेस और फेलियर, बट गुड टाइम्स, गुड गुड एक्सपीरियंसेस। सो जनरली एक एंटरप्रेन्योर से जब भी कोई पूछता है, तो देयर इज़ एंडलेस ज्ञान ऑल्सो कि अच्छा कैसे करें, बेटर कैसे करें, क्या ठीक करें, क्या नहीं करें। बट कोई इस बारे में बात नहीं करता क्या नहीं करना है, राइट? सो आई वांट टू आस्क यू दोस 4-5 थिंग्स जो आपको लगता है कि ये 4-5 चीज़ें क्लियर नो-नो है। Very good question actually, very good question. I think जितना चीज़ आप करते हो ना उससे ज़्यादा तो you should make sure कि what are the things not to do. तो हुँ, not to do राइट, का लिस्ट बहुत लंबा होना चाहिए, to do का लिस्ट बहुत छोटा होना चाहिए। सबसे पहला तो वो। तो ओके, I think one thing you should not do is you should not have a very long to do list, you should have a longer not to do list. ओके, इंटरेस्टिंग। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि है ना, हमेशा फ़ोकस करो कि आप जो टीम बिल्ड कर रहे हो, देखो फाउंडर का तो एक विज़न होता है।
हम्म राइट? विजन एग्जीक्यूट कौन करेगा? इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। हम्म आपका टीम है, आपका सिस्टम है, आपका स्ट्रक्चर है, वो चीज पे ज्यादा फोकस करो। सो व्हाट नॉट टू डू इज कि डोंट हायर बैड, डोंट रश इनटू थिंग्स, बिकॉज क्या है ना, आप किसी को हायर कर रहे हो, आपकी टीम का हिस्सा बन रहा है, तो आपका कल्चर भी शेप अप हो रहा है। राइट एंड कंपनी राइट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म There's a great book I read when I was about to start the Yarn Bazaar. There's a book called The Hard Things About the Hard Things. नाइस And I highly recommend this to everybody who wants to do a startup, because क्या है ना, बाहर से सबको लगता है यार बहुत अच्छी चीज़ है, स्टार्टअप कर लेते बट उसका जो राइट जर्नी, उसका जो हसल है, जितना पेशेंस, जितना परसिस्टेंस आपको चाहिए, वो उतना शायद लोगों को समझता नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स दैट विल प्रिपेयर यू फॉर दिस जर्नी। यू आर वेरी राइट। आपने जो पॉइंट बोला ना कि ये समझता नहीं है बाहर से कि एंटरप्रेन्योर का जर्नी कितना मुश्किल है। और जनरली आई थिंक एंड आई थिंक इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जनरली ऐसा था कि देख के यार क्या सही एंटरप्रेन्योर है, क्या बढ़िया पैसा कमा रहा है, हमें भी करना चाहिए, हम भी कुछ ऐसा करते हैं। दैट्स द फर्स्ट थॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग और राइट, बट आई एम सेइंग दैट इस पूरी थॉट प्रोसेस में ये भूल जाता है इंसान कि वो कितना चैलेंजिंग है। सो कैन यू गिव अ स्लाइट सेंस ऑफ कितना चैलेंजिंग है आप? सी, इसका भी एक रीजन है शुभम। कैसा है कि सबको सक्सेस स्टोरीज मालूम है, न्यूज में क्या पढ़ते एग्जैक्टली हो आप, जो सक्सेस है, फेलियर स्टोरी से सिर्फ राइट। पता नहीं है। आपके हिसाब से तो उगते हुए सब अच्छा सूरज ही है को ना। सबका सलाम है। हाँ, मतलब आपको जब तक फेलियर स्टोरीज नहीं पता, आपके लिए सब चीज अच्छा ही है। राइट। सो आपके लिए थोड़ा आप मेरे को बताओ कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है अभी तक का जर्नी? एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, लेट मी चेक, मैंने उसको सेव किया था। आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल डेफिनेटली। स्टेटमेंट दैट प्रॉपर्ली आंसर्स दिस थिंग। वाओ, ओके, विल वेट फॉर दैट देन, डेफिनेटली। आई सेव सच नाइस थिंग्स एंड आई एम श्योर आई, हाँ, वो बोलते हैं कि एहसान से हक तक का सफर तय करना है। एहसान से हक तक का सफर हद तय तक का करना सफर तय करना है। मतलब शुरू-शुरू में आप कुछ नया चालू कर रहे हो, है। तो क्या राइट। है, एंड इफ इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिक। अब जैसे मैं हुँ, हमारी बात करूँ, तो यार्न या टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फॉर दैट मैटर एनी इंडस्ट्री, इंडिया में कोई भी धंधा होता है वो उधार पर होता है। हुँ, एंड करेक्ट है, धंधा मतलब येस, आप समझ लो कि कोई मेरे ऑफिस में प्रिंटर भी लगाएगा ना, जो जो आईटी वेंडर है, वो भी 30 दिन का उधार देता है। राइट। तो आज उधार के बिज़नेस में जिधर बायर को आदत है 50 से 100 दिन के उधार पे यार्न खरीद रहा है 10, 20, 50 सालों से, उसको हम जाके बोलते हैं आपको हमसे माल खरीदना तो एडवांस पेमेंट पे खरीदना पड़ेगा। हुँ, ऑब्वियसली बिग सबसे पहले शिफ्ट। तो वैल्यू प्रोपोजिशन हैज़ टू बी देयर, नहीं तो वो क्यों हुँ, खरीदेगा एडवांस में, उसको फायदा नहीं है तो। बट राइट। फिर भी है ना, शुरू-शुरू में जब आप नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो चैलेंजेस रहेंगे, ऐसे टीथरिंग इश्यूज आने हैं, योर प्रोसेस इज नॉट दैट एफिशिएंट, योर प्लेटफॉर्म इज नॉट दैट एफिशिएंट। तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए ये लोगों का। तो ये जो एहसान वाला जो सफर है कि शुरू-शुरू में यू वांट देम टू सपोर्ट यू, हुँ, उधर से आप जाते हो एक वो पॉइंट पर जिधर दे देयर बिजनेस नीड्स योर बिजनेस, बिकॉज़ यू आर सॉल्विंग अ बिग पेन पॉइंट फॉर देम, एंड टुडे यू बिकम मोर एफिशिएंट। हुँ, वाओ! आई लव दिस लाइन, एहसान से हक तक की जर्नी, राइट। एक और पॉइंट आपने बोला कि व्हेन यू हायर अ टीम, हायर इट वेल बिकॉज़ वो है जो इम्प्लीमेंट करेंगे। इस पे मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि आई थिंक कि मेरे पास एक आइडिया अच्छा नहीं है, तो मैं क्या बिज़नेस करूँ मेरे को नहीं समझ आता। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो बोलते हैं कि आइडिया डज़ नॉट मैटर, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन दैट मैटर्स। So I have that question for you. Do you think the idea has more power और या फिर implementation में ज़्यादा power है? 100% इम्प्लीमेंटेशन, 100%। मतलब देयर आर सम क्रेजी आइडियाज, वेरी गुड आइडियाज जो इम्प्लीमेंट खराब हुए तो कुड नॉट वर्क वेल। एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या, अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस, इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ योर मार्केटिंग, योर सेल्स, योर फाइनेंसिंग, योर ऑपरेशंस, एवरीवेयर। Hmm. कुछ काफी बिजनेस है जो आइडिया बहुत अच्छे थे, सेल्स भी अच्छा हुआ, सब चीज अच्छा हुआ, बट ब्रांडिंग अच्छा नहीं हुआ। तो कस्टमर परसेप्शन आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। Right. तो इवन दैट इज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। Great. Lovely discussing with you, Pratik. I think we had a lot of fun, and obviously, I have a lot of questions जो कि I can go on asking, but I can see the clock also ticking. So I'll quickly shift to the concluding section of the podcast. And this is something which is common across all my episodes, audio or audio video both. And we call the show Secrets of Storytellers. So I want to ask you one secret about the Yarn Bazaar जो आपने ज़्यादा शेयर ना करा हो, लाइक यू हैव नॉट रियली स्पोकन अबाउट इट अ लॉट। नहीं, तो वैसे सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बट हमारा जो पर्पस है ना, जैसे विजन मिशन तो बहुत पब्लिक होता है, इट्स ऑलवेज हम्म पार्ट ऑफ ऑल योर ब्रांडिंग मटेरियल्स, वेबसाइट पर डलता है,
हमारा पर्पस हम जनरली शेयर नहीं करते हैं एंड बिकॉज इट्स अ वेरी डीप Okay. पर्पस एंड लेट मी शेयर दैट विथ यू। Wow. Okay. हर किसी का ना एक सक्सेस डेफिनेशन होता है कि किसी को लगता है यार इतना वायलेशन हो गया तो कंपनी सक्सेसफुल हो गई, या इतना रेवेन्यू हो गया तो कंपनी सक्सेसफुल हो गई, इतना टर्नओवर हो गया तो कंपनी सक्सेसफुल हो गई। एक पर्पस होता है कि आपका पर्पस क्या है बिजनेस को लेकर या सक्सेस को Right. लेकर। हमारा पर्पस जो है बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि आवर पर्पस इज टू डिसरप्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन सच अ मैनर दैट वी बिकम अ केस स्टडी। So the day leading B schools in the world are teaching the Yarn Bazaar as a case study, I think that is the day when we can say कि we are successful, because वो जब मतलब आप highly disrupt नहीं करो तब तक ये चीज होना है नहीं। Wow, lovely. I wish you all the best, and I'm very sure with the passion, the grit, the hard work जिससे आप काम कर रहे हो, this will be a reality, and not just in any B school, but probably across the world. Thank you once again, Prateek, for your time. It was lovely chatting with you, and I hope you had a good fun speaking to us as well. Absolutely, thank you for having me here. Great. For all the listeners, stay tuned for more episodes on the Shark Tank India series, and keep writing us. Keep writing to us on our social media handles, or you can also share your thoughts comment section में. Please like, share, and subscribe to the channel. Until the next storyteller and the next secret, this is Shubham signing off. Bye bye.